Good afternoon, panel. I am Ujjwal Datta and I am the leader of Team Rockers. Here, me and my team members came up with a very genuine problem, the problem of bad hospital management system, the problem due to which many people have to lose their life, many families have to lose their life. As we all know, at the time of emergency, we have to call multiple hospitals to check whether the beds are available or not, whether the doctors are available or not, whether the emergency wards are available or not. So it is a very big and critical problem in our society, in our hospital management system, which I think have to solve, have to improve, and this problem should be solved as soon as possible. As I'm a BTech student and we all are living in a technological era where every problem has its technological solution. So me and my team members came up with a technical solution towards this problem. So here we are going to develop a software which can maintain and manage the entire hospital management system. So basically our software has three main processes. First of all, OPD management system. Secondly, bed management system. Third, complete management from patient's admission to its discharge and even to its transfer to any another hospital. So let us discuss it in a more detailed manner. First of all, we are going to implement the digital queuing management system with predictive analytics to manage patients flow and optimize resources. So जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, स्पेशली ओपीडीज़ में, तो हमें बहुत लंबे लाइन में खूब देर तक खड़े रहना पड़ता है अपना नंबर लगाने के लिए. So we are going to switch the entire process in a digital manner. आगे बढ़ते हुए we use appointment reminders and enforce policies to late arrival to minimize disruptions. अगर आज अपॉइंटमेंट है और वो आज हॉस्पिटल आने में असमर्थ है, नहीं आ पाया, तो हम उनको एक जेंटल रिमाइंडर देंगे कि भाई आज आपका अपॉइंटमेंट था, आप नहीं आ पाए, तो हम आपका अपॉइंटमेंट दूसरे दिन शिफ्ट करते हैं सेम टाइम. Third, our software is going to give a live updates and it possesses a beautiful, very simple yet very dynamic dashboard view, which is used to display the visual representation of bed availability across different departments and units. Software also possesses transfer management system and capacity planning system, as our software is directly getting all the data from the hospitals. Website also process demand forecasting. For example, एक पेशेंट है, एक नया डॉक्टर उनका डायग्नोस कर रहा है और उसको उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारे वेबसाइट में उसके प्रीवियस, क्योंकि उसी शहर में दूसरा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपना डॉक्टर चेंज किया है और इस डॉक्टर के पास उसका कोई भी प्रीवियस डेटा नहीं है, तो हमारे वेबसाइट में उस पेशेंट का पूरा डेटा होगा, प्रीवियस रिकॉर्ड होगा, जो कि पेशेंट और डॉक्टर पेशेंट के आईडी से इजीली एक्सेस कर सकता है, तो जिससे डॉक्टर को एक पेशेंट के पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाएगा. सेकेंडली, अरेंजमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन. जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऐसी कई दवाइयाँ होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक स्टोर में ही या फिर डिस्पेंसरी में ही मिलता है, तो पूरे सिटी में जितनी भी डिस्पेंसरीज होंगी, जितने मेडिकल स्टोर्स होंगे, उन सब का डेटा, उन सब की मेडिसिन हमारा जो वेबसाइट है वो स्टोर करके रखेगा और कोई भी उसको कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन सर्च करके ऑर्डर कर सकता है. अब और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेक्निकल अप्रोच को, टेक स्टैक को और हमारे वेबसाइट के फ्लो को, हमारे सॉफ्टवेयर के फ्लो को. सो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट. बैकएंड के लिए मेनली हम जावास्क्रिप्ट और पाइथन में रिलाई कर रहे होंगे. डेटाबेस हम MySQL या MongoDB जैसे यूज़ कर रहे होंगे और डेवऑप्स टूल्स में मोस्टली हम AWS को इस्तेमाल कर रहे होंगे इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. चलिए अब समझते हैं हमारे वेब फ्लो को. तो जैसे ही
कोई यूज़र हमारे पोर्टल में जाता है, सबसे पहले उसको होम स्क्रीन, एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मिलेगी जो पेशेंट्स पोर्टल का होगा। उस होम स्क्रीन में 7 से 8 नेविगेशन बार्स में बटन्स होंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट्स, डॉक्टर्स पोर्टल, पेशेंट्स पोर्टल, डिस्पेंसरीज, ओपीडीज, बेड्स एंड एडमिशन सेक्शन। ये 7 से 8 सेक्शंस उसको दिखाई दे रहे होंगे। जब वो डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसमें सारी डिपार्टमेंट के लिस्ट आ जाएंगे कि ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक एक्सेट्रा। और उन किसी भी डिपार्टमेंट में क्लिक करेगा, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। सेकेंड, अब आते हैं हम डॉक्टर्स पोर्टल में। तो डॉक्टर्स पोर्टल में जैसे क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन और साइन अप पेज आएगा, और जैसे ही वो इस लॉगिन साइन अप पेज में क्लिक करेगा डॉक्टर्स पोर्टल में खुल जाएगा। बेसिकली ये जो डॉक्टर्स पोर्टल्स है ये कॉमन पीपल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए होगा। अब आते हैं हमारा यूनिवर्सल पोर्टल में, जो कि है पेशेंट पोर्टल। सिमिलरली जैसे डॉक्टर्स पोर्टल में था, इसमें भी लॉगिन साइन अप हमको करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास पेशेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है डिस्पेंसरीज में जैसे क्लिक करेंगे तो वाइड वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स की क्यू लिस्ट हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद ओपीडीज़ में हम पूरा देख सकते हैं कि भाई कौन से डिपार्टमेंट से कब से कब तक डॉक्टर्स बैठते हैं, कैसे हम उसमें हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, उसमें कितने लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनका डायग्नोसिस चल रहा है, कितने लोग अभी वेटिंग में हैं, कितने लोगों का हो चुका है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको ओपीडी सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है बेड्स का सेक्शन। बेड्स के सेक्शन में जो यूज़र है, जो पेशेंट है, वो चेक कर सकता है कि भाई कितने बेड्स किस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। इसको बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जनरल वार्ड, जैसे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड होते हैं, उसके बाद वार्ड होते हैं, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया है, और इन 3 कैटेगरीज़ में कितना क्या अवेलेबल है वो सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में लग रही होगी इस बेड सेक्शन में। और आता है लास्ट एडमिशन सेक्शन में जो पेशेंट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालनी पड़ेगी, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो हॉस्पिटल्स की लिस्ट आएगी। उस हॉस्पिटल्स की लिस्ट आएगी, और वहाँ से वो किसी भी एक हॉस्पिटल को चूज़ कर सकती है, और वहाँ से वो उस हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म भर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब समझते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स के बारे में। तो इसके वैसे तो कई बेनिफिट्स और कई इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहला है सिटी वाइड इंटीग्रेशन एंड स्केलेबिलिटी। जैसे कि सारे शहर के हॉस्पिटल्स, सिटी के सारे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स एंड जितने मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, सारे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स के बीच में। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है, क्योंकि एक वाइड सिटी एरिया नेटवर्क है हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स का, तो फ्रॉड होने के चांसेस हमारे साथ कम हो जाते हैं। दूसरा, पेशेंट एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, इसको हम आगे समझेंगे जब हम हमारे यूआई डिज़ाइन को देख रहे होंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में कितनी इन्वेंट्री है, मतलब कितने मशीन्स अभी अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, कौन सी मेडिसिन्स हैं, और पूरी उनकी अकाउंटिंग हमारा सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होगा। और ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हमारे वेबसाइट में हो रहे होंगे। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इन्हेंस कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन। ये जो जितने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उनका बर्डन कम करेगा हमारा सॉफ्टवेयर। एंड इट इज़ अ वेरी स्केलेबल सॉल्यूशन एज वेल। और जो हमारा एप्लीकेशन है वो पेशेंट के जो ट्रैकिंग है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, उसकी अभी की कंडीशन और उसका फ्यूचर एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो पेशेंट का एक इम्प्रूव ट्रैकिंग हमारी वेबसाइट, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा होगा।
और जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि क्योंकि हमको मल्टीपल हॉस्पिटल्स में कॉल लगाना पड़ता है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है हमारे सॉफ्टवेयर का, जो कि इन्हेंस करेगा इमरजेंसी रिस्पांस को, क्योंकि जो यूज़र हैं वो क्लियरली विजुअली देख पा रहे होंगे कि भाई किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं, कितनी इमरजेंसी वार्ड अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट हॉस्पिटल अपना चूज़ कर सकता है। So let us now discuss about feasibility and viability. Our software provide one-touch patient admission, transfer and discharge, live monitoring of patients' conditions, service request and review, real-time overview of hospital and beds, quicker and data-driven decision making for doctors, easy usability and accessibility of hospitals and our software, help in better healthcare delivery, remote eyes on beds allocation and capacity, reduce paperwork process में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ये उसको रिड्यूस करेगा, allow digital patient data collection and storage, data gets uploaded to database once it is connected to the internet। और ऐसे कई सारे फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी हैं हमारे सॉफ्टवेयर के। अब लेकिन सारे बेनिफिट्स एंड फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी के साथ हमको बात करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट, हमारे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क आएंगे। तो बेसिकली 4 मेजर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला कनेक्टिविटी इशू, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल होते हैं लेकिन वो हमको शोकेस नहीं करते हैं, सो दैट दे कैन एक्स्ट्रा चार्ज टू द पेशेंट। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर एक लाइव अपडेट प्रोवाइड कर रहा होगा यूज़र्स को बेड अवेलेबिलिटी के बारे में, हॉस्पिटल के सारी चीज़ों के बारे में। तो ये एक रिस्क हो सकता है हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम और चैलेंज आ सकता है कि एक वाइड एरिया में सारे हॉस्पिटल्स को एक साथ कनेक्ट करना, ये एक चैलेंज हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन भी है। इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि हम उनको हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कई सारे बेनिफिशियरी फीचर्स प्रोवाइड करें, जिसको यूज़ करने के लिए वो हमारे सॉफ्टवेयर में आएँ। ये एक अच्छा हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा एक सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज़ एक वाइड एरिया को ये कवर कर रहा होगा, होल इंडिया को ये कवर कर रहा होगा सॉफ्टवेयर, तो इसमें हमको गवर्नमेंट की हेल्प भी लगेगी। अगर गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है कि सारे हॉस्पिटल्स को इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना एसेंशियल है, जैसे आधार कार्ड सबके पास होना ज़रूरी है, वैसे ही सारे हॉस्पिटल को इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना एसेंशियल है। तो ये एक टेक्निक हो सकता है कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। एक सर्टेन सिस्टम चले आ रहा है सारे हॉस्पिटल्स में, और उस सिस्टम के साथ इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, इंटीग्रेट करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, जो कि ईज़िली रिजॉल्व हो सकती है बाय मेकिंग आवर सॉफ्टवेयर ईजी टू इंस्टॉल एंड यूज़। उसके बाद आता है प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि सारे हॉस्पिटल का डेटा हमारे वेबसाइट में, हमारे सॉफ्टवेयर में होगा, हम डेटाबेस में होगा, सारे पेशेंट्स का डेटा हमारे डेटाबेस में होगा। तो कई सारे जो हैकर्स हैं वो इसमें अटैक कर सकते हैं, कई सारे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। वो भी इम्प्रूव किया जा सकता है हमारे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, इन्हांस करके, और मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स को लगा के। और लास्ट एक चैलेंज आता है स्टाफ ट्रेनिंग एंड अडॉप्शन। तो क्योंकि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो जो नए स्टाफ्स हैं, जो पुराने स्टाफ्स हैं, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग कैंपेन्स चला सकते हैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे वो स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे परफेक्टली यूज़ किया जाता है, और उसका एक लाइव डेमो वो प्रोवाइड करेगा हमारी जो ट्रेनिंग की टीम है। तो ये कुछ चैलेंजेस है, और इसके कुछ ये सॉल्यूशंस हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके हम इस चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं।
अब चलिए हम समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को, हमारे वेबसाइट के, हमारे सॉफ्टवेयर के UI/UX डिज़ाइन को। सबसे पहले हमारा जो डिफ़ॉल्ट पोर्टल है, पेशेंट्स पोर्टल, वो ओपन होगा। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मेजर ऑपरेशन है हमारे सॉफ्टवेयर का, OPD मैनेजमेंट, बेड अवेलेबिलिटी एंड पेशेंट एडमिशन, ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसके नीचे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हमको दिखाई दे रहे होंगे और ये स्क्रॉलेबल इफ़ेक्ट होगा और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और किसी भी डिपार्टमेंट में हम क्लिक करेंगे तो वो डिपार्टमेंट किस किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है और वो हॉस्पिटल कब से कब तक खुला रहता है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे हमको मिल रही होगी। उसके बाद जैसे ही हम बेड्स के उसमें जाते हैं, क्लिक करते हैं बेड्स के सेक्शन में जो हमारे नेविगेशन बार में है, तो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल के लिस्ट खुल जाएगा। उनमें से किसी भी एक हॉस्पिटल में हम क्लिक करेंगे तो उस हॉस्पिटल का पूरा बेड मैनेजमेंट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो बेड मैनेजमेंट है वो 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया है: जनरल वार्ड, बेड अवेलेबिलिटी, डिलक्स वार्ड बेड अवेलेबिलिटी एंड इमरजेंसी वार्ड बेड अवेलेबिलिटी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये UI डिज़ाइन होने वाला है और इसमें हम कलर साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे होंगे पेशेंट इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए। रेड जो कलर है वो डिफ़ाइन करेगा ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड फॉर लॉन्ग टाइम। येलो डिफ़ाइन करेगा सून इट विल गोइंग टू बी वेकेंट एंड ग्रीन डिफ़ाइन करेगा कि ये जो बेड है अभी वेकेंट है। उसके नीचे फॉर्म होगा। फॉर्म में पेशेंट अपना नाम, नंबर, फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स, उसको क्या प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर से उसको इलाज कराना है, कौन से वार्ड में उसको एडमिशन लेनी है, कौन से रूम नंबर में उसको चाहिए है और एक कुछ ऑप्शंस होंगे और इनको चूज़ करके वो सबमिट करेंगे तो वो ईज़िली जो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में आएगा और वो उस हॉस्पिटल में एडमिट, उसका ईज़िली एडमिशन हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी पेपरलेस एडमिशन ऑफ अ पेशेंट। अब हम बात करते हैं OPD मैनेजमेंट में। तो OPD सेक्शन जो हमारे नेविगेशन बार में है उसको जैसे क्लिक करेंगे तो सेम नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल की लिस्ट आएगी। उसमें से किसी भी एक हॉस्पिटल को हम क्लिक करेंगे तो उसमें हम अपॉइंटमेंट फॉर्म सबसे ऊपर आएगा, दिखाई देगा। उसमें हम अपना नेम, अपना नंबर, अपना ईमेल, अपना अब हमको जो प्रॉब्लम है वो, डिपार्टमेंट, डॉक्टर, डेट, डिटेल्स डाल के सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। नीचे हमको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स हमको शोकेस होने लगेगी, जैसे कि भाई आपका कितने लोग अभी वेटिंग में हैं, कितने लोगों का डायग्नोसिस अभी ऑनगोइंग है और कितने लोगों का कंप्लीट और फिनिश हो चुका है, और उनकी सारी डिटेल्स हमको शोकेस नीचे होने लगेगी। उनका पेशेंट का अपॉइंटमेंट ID, डेट, किस टाइम में उनका अपॉइंटमेंट होगा, पेशेंट का नेम, डॉक्टर्स नेम और उनका स्टेटस कि इनका हो चुका है, इनका अभी बाकी है, इनका अभी ऑनगोइंग है और इनका अभी वेटिंग में है। ये सारी डिटेल्स हमारा OPD सेक्शन में हमको पता लग रहा होगा, विच इज़ अ वेरी डायनेमिक इंटरफेस येट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली ऐसे कई सारे और वेब पेजेस हमारे सॉफ्टवेयर में होंगे, जैसे कि डिस्पेंसरीज़ का, OPDs का, बेड्स का, एडमिशन्स का, एडमिशन फॉर्म का, डिपार्टमेंट्स का, ये सारे और भी कई सारे पेजेस होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में और ये सारे पेजेस बहुत ही इंटरेक्टिव होंगे। ही इंटरेक्टिव होने के साथ वेरी इजी टू यूज़ एंड येट वेरी डायनेमिक पेजेस होंगे ये। इसी के साथ हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। होप you guys like it and now we are me and my team are working on this project. We have half developed this website or a software and we are developing it. Thank you.